Hello everyone. In previous class, we discussed about the excitation system and the classification of excitation system used in synchronous machine. इसमें हमने बहुत सारे एक्साइटेशंस के क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी किया था प्रीवियस वाले क्लास में. इस लेक्चर में हम देखेंगे EMF equation of the alternator as well as some numerical related to synchronous machine. तो जो सिंक्रोनस मशीन के न्यूमेरिकल है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है. पहला जिसमें हमें KD एंड KC निकालना पड़ता है, मींस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड पिच फैक्टर निकालने हमें एग्जाम में आएगा. सेकंड कैटेगरी है जिसमें कि हमें ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का डेटा गिवन होगा और हमें कुछ पैरामीटर फाइंड आउट करने होंगे. थर्ड कैटेगरी जो है उसमें हमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करनी होगी अल्टरनेटर की. तो ये 3 टाइप की कैटेगरीज है न्यूमेरिकल की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए पहले हम देख लेते हैं EMF इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटर. उसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं EMF इक्वेशन को. तो उसके लिए मैं बोर्ड पे आ गया हूँ और स्टार्ट करते हैं हम EMF इक्वेशन of alternator. अल्टरनेटर को ही हम सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं. तो सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन क्या होती है? सिंक्रोनस मशीन इज अ डबली एक्साइटेड एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, और वी कैन से दैट इट इज अ डबली एक्साइटेड कांस्टेंट स्पीड ड्राइव which convert one form of the energy to any other form, like electrical to mechanical as well as mechanical to electrical. चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं EMF equations of alternator. So when the magnetic field cut by a conductor, EMF is induced in the conductor, and the magnitude of this dynamically induced EMF in the conductor depend upon the rate of cut of flux. Yeah, simple we can say that depend upon the rate of change of flux. मतलब जो हमारा d phi by dt हो रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, जब फ्लक्स कट होता है कंडक्टर से तो उस कंडक्टर पे पर्टिकुलर कंडक्टर पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है. फ्लक्स को हमने रिप्रेजेंट किया है phi से, एंड dy dt इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑकर होता है तो वहां पे एक EMF इंड्यूस हो जाता है. सो वी कैन say that E proportional to d phi by dt. This is the equation. जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा जो हो जाता है E is equal to minus of n d phi by dt. ये माइनस साइन क्यों आता है? जो माइनस साइन आ रहा है ये जो माइनस साइन आया है, माइनस साइन क्यों आता है? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. और n क्या है? व्हाट इज n? n इज द स्पीड in RPM. तो अभी हमने यही समझा कि when a magnetic field is cut by a conductor, EMF is induced in the conductor, and the magnitude of this dynamically induced EMF of the conductor is depend upon the rate of change of flux. So the frequency of this generated EMF F is equal to Pn by 120, or we can say that N is equal to
120F upon P, where Z is equal to number of conductor T is equal to number of turn per phase, Z is equal to 2T, phi is equal to flux per pole, P is equal to number of poles, F is equal to supply frequency, and N is equal to speed of rotor in RPM. So in one revolution, each conductor is cut by the flux of P into phi, and the time to cut this flux is 60 by n second. So the average rate of cut of flux, so average rate of cut of flux is equal to flux cut divided by time, flux cut divided by time, so is equal to flux cut कितना है हमारा 5P divided by time 60 by n. So the average rate of cut of flux is equal to 5Pn divided by 60. This is the average rate of cut of flux. Now the average EMF induced in one conductor, also phi Pn by 60. Now the average EMF induced in Z conductor, तो वन कंडक्टर में जो इंड्यूस EMF रहेगा वो वही रहेगा जो रेट ऑफ कट ऑफ फ्लक्स है, इसलिए वो भी हमारा 5Pn by 60 है. Now the average EMF induced in Z conductor, जो हमारा एवरेज EMF इंड्यूस्ड हो रहा है इन Z कंडक्टर इज इक्वल टू 5Pn by 60 into Z. So by solving this, और put the value of n का भी हमने फॉर्मूला लिखा था, n is equal to 120F upon P. So phi P, put the value of n, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, इंटू 120F डिवाइडेड बाय 60 इंटू P इंटू Z. So finally we can write that 2 phi F into Z. The value of Z, we can know that the value of Z is equal to 2T. So put the value of Z, so the final value is 2 phi F into 2T. So we get 4 phi F into T in volts. Now calculate the RMS value of EMF per phase. So the RMS per phase value of EMF induced is equal to 1.11 into average EMF
एवरेज EMF पर फेज। तो अभी हमने जो एवरेज EMF पर फेज की वैल्यू निकाली है उसको अगर हम 1.11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट दी RMS वैल्यू ऑफ EMF पर फेज। सो पुट द वैल्यू, सो 1.11 इंटू 4πf इंटू T, so we get 4.44 F5 into T volts. So this is called the EMF equation of the alternator. 4.44 into F into phi into T volt. This is called the final EMF equation of alternator. This is for full pitch and concentrated binding, but for the fractional pitch and distributed binding, the coil span factor Kc and the distribution factor Kd are taken into account. So the RMS value of EMF per phase, अगर हम KD और KC को भी कंसीडर कर लेते हैं तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा EMF इक्वेशन का वो हो जाएगा 4.44 F इंटू फाई इंटू T इंटू KD इंटू KC volts. This is called the EMF equation of the alternator if we consider the KD and KC, where KC is called the coil span factor and KD is called the distribution factor. चलिए, तो ये तो हो गया हमारा EMF equation of the alternator. नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल पे कुछ। तो पहले हम सबसे पहले न्यूमेरिकल देखेंगे KD और KC का, मीन्स कैसे हम कॉइल स्पान फैक्टर और पिच फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बताया आपको 3 कैटेगरीज के न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या जो एग्जाम में आते हैं। पहला जिसमें हमें KD और KC फाइंड आउट करना होता है। सेकंड KD KC के साथ साथ उसमें हमें EMF इक्वेशन भी यूज होगी, मतलब हमें इंड्यूस EMF भी न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं KD और KC के साथ। सेकेंड कैटेगरी जो रहेगी वो OCSC टेस्ट वाली रहेगी, जिसमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का डेटा हमें गिवन रहेगा और हमें डेटा कुछ पैरामीटर्स हैं OCSC टेस्ट के जो फाइंड आउट करने होंगे। थर्ड कैटेगरी में जो रहेंगे न्यूमेरिकल वो उसमें हमें वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर का फाइंड आउट करना होगा। तो हम पहले फर्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं जिसमें हमें KD और KC जो है फाइंड आउट करना है। चलिए, तो वापस से अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। और तो पहला न्यूमेरिकल है जो कि जिसमें हमें KC एंड KD जो है वो फाइंड आउट करना है। न्यूमेरिकल इज दैट अ 3-phase 4-pole alternator has 60 slots, 2 conductor per slot. The pitch of the coil is 3 slots less than full pitch. Find the KC and KD. न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले जो भी गिवन क्वांटिटीज हैं वो हमें लिख लेनी है, उसके बाद जो भी फाइंड आउट हमें करना है वो हमें लिख लेना है, और तीसरा कौन सा फॉर्मूला यूज करके वो क्वांटिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कोई भी न्यूमेरिकल करने के 3 जो है बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है? पहला तो 3-phase मशीन है, 4 पोल दिए हुए हैं, 60 स्लॉट दिया हुआ है, 2 कंडक्टर पर स्लॉट दिया हुआ है।
और coil in 3 slot less than to full pitch, ये हमें गिवन है। तो चलिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फुल पिच। फुल पिच हम कैसे निकाल सकते हैं? एक्चुअली हमारा जो केसी का फॉर्मूला होता है वो होता है cos अल्फा बाय 2। तो हमें पहले तो अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। फाइंड आउट हमें करना है केसी एंड केडी। तो केसी का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो केसी इज इक्वल टू होता है केसी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय 2। मीन्स हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और केडी का है केडी इज इक्वल टू साइन एम बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय एम साइन बीटा बाय 2। तो ये हमें चीज़ें निकालनी है। हमें बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोल पिच। पोल पिच निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पोल पिच का फॉर्मूला हमें पता है। पोल पिच इज इक्वल टू होता है हमारा स्लॉट्स बाय पी, मीन्स स्लॉट्स बाय नंबर ऑफ पोल्स से हम निकाल सकते हैं पोल पिच। तो स्लॉट्स हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, 60 स्लॉट हमें दिया हुआ है और 4 पोल की मशीन है। सो 60 डिवाइडेड बाय 4, सो वी गेट दी 15 पोल पिच, वी गेट 15। नाउ 15 slot into 180 degree, so 3 slots is equal to alpha. So finally the value of alpha is equal to 180 into 3 by 15. So we get the value of equal to 36 degree. सो अभी हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली जो हमारी आ गई 36 डिग्री। अब हम केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ केसी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय 2। So put the value of alpha, get cos 36 by 2. So we get the AC is equal to 0.95. The of KC is called coil span factor 0.95 is the value of KC. तो हमने अभी KC की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हम निकालेंगे KD। तो KD की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें बीटा निकालना पड़ेगा। बीटा हम कैसे निकालेंगे? बीटा का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय स्लॉट पर पोल। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय स्लॉट्स
पर पोल। तो हमारे पास 180 गिवन है, यहाँ पे हमने लिख लिया 180। स्लॉट्स हमारे पास दिए हुए हैं 60 और पोल दिया हमारे पास 4। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी गेट इज इक्वल टू 12, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12 डिग्री। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एम। एम कैसे? वैल्यू ऑफ एम, एम इज कॉल्ड स्लॉट पर फेस पर पोल। स्लॉट पर फेस पर पोल। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। स्लॉट हमारे पास कितने दिए हुए हैं? स्लॉट इज 60। फेस कितना दिया हुआ है? 3 फेस। पोल कितने दिए हुए हैं? 4 पोल। सो वी गेट द आंसर इज 5। द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5। हमने m की वैल्यू भी निकालनी, हमने बीटा की वैल्यू भी निकालनी। अब वी कैन नो दैट द फॉर्मूला ऑफ kd इज इक्वल टू, तो kd का फॉर्मूला हमें पता है, kd इज इक्वल टू होता है साइन m बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय m इंटू साइन बीटा बाय 2। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। सो वी गेट द आंसर ऑफ kd। वैल्यू पुट कर देते हैं। सो kd इज इक्वल टू साइन 5 इंटू 12 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 साइन 12 by 2. So by solving this equation, the final answer of kd, so kd is equal to 0.956। तो इस तरीके से हम जो है kdc की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो है हमारी न्यूमेरिकल की, उसमें हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम आप और भी जो केडी और केसी की कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करिए, और कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। और